लगाओ परसेंटेज। ट्वेंटी 20%, then 15%. It's all about the petroleum lubricants. हैं? पेट्रोलियम लुब्रिकेंट्स का 15% है। अच्छा, सी WPI wholesale price index, and it includes only goods, not services. So it is a kind of incomplete measurement. It measures the inflation at the wholesale level, so it does not show the COLA. Yes, COLA, cost of living adjustment, because a person actually purchases the item at the retail price, not at the wholesale price. So if the items would be charged at the retail price, then that shows COLA, cost of living adjustments. मेरा कॉस्ट किस पर होता है जी? कंज्यूमर के लेवल पर, प्राइस पे, बाजार में जाता हूँ उस पर, कि होलसेल प्राइस पे? होलसेल प्राइस तो सस्ता होता है ना, और बाजार वाला महंगा होता है, तो इसीलिए सही से ये सही कीमत को नहीं दिखाता. डज नॉट शो द रियल प्राइस, एंड इट इंक्लूड्स ओनली गुड्स, not services, so it is incomplete also. It gives more importance to the manufactured items, and then food items, non-food and minerals 20%, petroleum lubricants. Don't you see, food items 20 में करो तो 6-7% लगभग food items है. So it gives less importance to the food items, and that's why sometimes onion or tomato prices are high, but still the inflation is low, because अगर पूरा food item 6-7% है, उसमें पोटैटो तो ये 1% होगा. So if 1% prices would go up, the 99 prices would be down, so overall inflation would be down only. So that's why sometimes we see कि tomato prices 70-80 rupees है, but still inflation कम दिखाता है ग्रोथ में. लोग बोलते हैं कौन सा इन्फ्लेशन है जी, समझ के बाहर है, बिकॉज वो इन्फ्लेशन ज़्यादा किस पर डिपेंड है? मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स पे. तो मैंने टोमेटो वाला तो मैन्युफैक्चर्ड आइटम है नहीं, वो इसका पार्ट है. टोटल फूड आइटम 7-8, इसमें से एक टोमेटो और अनियन दो मिला के 1-2%, तो 1-2% का प्राइस ऊपर, रेस्ट प्राइस नीचे, तो इन्फ्लेशन क्या होगा? डाउन ही होगा. सो WPI, दैट्स वाई देयर वाज अ नीड ऑफ CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. राइट अबाउट इट? यस, राइट अबाउट इट. Yes, right. WPI includes only goods. WPI includes only goods. Only goods. Comma, not services. Not service. It includes 697 items. It includes 697 items. 697 items, and its base year is 2011-12, and its base year is 2011-12. Earlier it was including 676 items. It was including 676 items. 76. And the base year was 2004-05, and the base year was 2004-05. The base year was 2004-05, isn't it? Okay, base year 2004-05. So 4-5. It does not show COLA. It does not show COLA. C.O.L.A. COLA. Cost of living adjustment. Cost of living adjustment. It does not show COLA. Cost of living adjustment. It does not show COLA. COLA को नहीं दिखाता है. Yes. Cost of living adjustment. ठीक है. Wholesale price index. Yes. All right. Department of Economic Affairs
Department of Economic Affairs, Department of Economic Affairs, Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Commerce and Industry, does the measurement of inflation through WPI, of inflation through WPI. Inflation through WPI. Yes. तो incomplete भी है, does not show the real cost of the consumers, and also that it gives more importance to manufactured items, it gives less importance to the food items. तो ये है. So that's why that one another index was launched, and that is what Consumer Price Index. If you see the CPI, so look at this Consumer Price Index. Listen first. Consumer Price Index. It includes both goods and services. It shows COLA, cost of living adjustment, because under it inflation is measured at the consumer level, retail prices. So right, it includes CPI. About CPI, then you will write this one. Yes, it includes both goods and services. It includes both goods and services. In the measurement of inflation, in the measurement of inflation, in the measurement of inflation. Goods and services in the measurement of inflation. Yes, it shows COLA. It shows COLA. Its base year is 2012. Its base year is 2012. And it includes 260 items. It includes 260 items. Yes, full stop. It gives more importance to the food items. It gives more importance to the food items. To the food items. Earlier, old series was used to measure inflation through CPI, was used to measure inflation through CPI. Now it has been replaced by new series. New series. Since February 2012. So please, this is CPI old series, OS old series, that is CPI NS new series. Copy it. CPI OS old series, NS new series. OS old series, NS new series. अच्छा OS का ये फुल फॉर्म भी लिखते चलो.
CPI stands for the consumer price index, से तो क्लियर है. AL is agriculture labor. AL agriculture labor. RL rural labor. RL rural labor. IW industrial worker. UNME urban non-manual employees. Urban non-manual employees. Non-manual employees. Urban non-manual employees. Urban non-manual employees. Yes. Although, right, although, note necessary, नीचे note लिखना, note. Although CPI IW is still used, CPI IW industrial worker is still used to measure dearness allowance of the laborers. Dearness allowance of the laborers. Yes? Dearness allowance of the laborers. Yes, right. This ये CPI जो IW है, it is published by Labor Bureau. It is published by Labor Bureau. Bureau, BUREAU, Bureau. Since 2016, its base year has also been changed from 2004-05 to 2011-12. अच्छा ध्यान देना, ये 2015 PT क्वेश्चन, CPI IW. Yes, published by which department? That was the question. कौन इसको पब्लिश करता है? अच्छा CPI के रेस्ट है, वो पब्लिश होते थे CSO से, Central Statistical Office, which was formed in 1951. But in 2019, CSO has been merged along with the NSSO into NSO. So now the entire CPI is measured through NSO. So right, further paragraph change करके. Till 2019, inflation through CPI was being measured by CSO, Central Statistical Office, dash देके लिख लेना, formed in 1951. But in 2019, CSO along with NSSO, yes, NSSO, have been merged into NSO, National Statistical Office, full stop. Right, NSO is governed by MOSPI, Ministry of Statistics
and program implementation. MOSPI के full form. Ministry of Statistics and Program Implementation. Program Implementation. Ministry of Statistics and Program Implementation. Inverted comma close. Sorry, bracket close. Must be, है ना? Ministry of Statistics. So NSO. So CPI हमारे पास, तो वी हैव द न्यू सीरीज. अभी आप सर्वे में जब भी देखोगे, सो ऑलवेज मेंशन CPI-C. तो CPI-C क्या है? CPI ये जो हम लोगों ने गलती की है ना, प्लीज़ इसको करेक्ट करो. यहाँ तो UNME है ही, ये कंबाइंड नाम है इसका कंबाइंड है. कंबाइंड करो इसको प्लीज़, कंबाइंड. इट इज़ पॉपुलरली नॉन एज CPI-C. CPI-C इसको, UNME तो है ही, CPI-C. सो दैट इज़ वेरी पॉपुलर. पहले CPI में कंबाइंड का अभाव था, कंबाइंड कोई था नहीं, तो इसीलिए CPI कंबाइंड लेकर आएगा. दैट मीन्स अर्बन रूरल बोथ कैन बी मेजर्ड. बट द प्रॉब्लम विद द CPI इज दैट इंडिया हैज़ अ लार्ज सेगमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. So it's quite difficult to measure the inflation there. Suppose we are moving through the e-rickshaw and from here to camp, and yesterday he was charging 10 rupees. Today he is charging 15 rupees. So there is a 50% inflation. But since we are dealing in cash, so there is no information to the government कि इस सर्विस में क्या inflation है. What is the inflation into the service? So that's why we talk about the digital payment. If digital payment we will do, the information through banks would reach to the government, and the real calculation can be done, and that is very, very essential. For example, country needs 20 lakh crore rupees for the development, but through expenditure method government needs to know that how much money available with the people, then the rest money would be arranged by the government, isn't it? अरे कितना पैसा है तो बाकी ही अरेंज करना पड़ेगा ना. Then the tax would be accordingly, but the government doesn't know, so it might be the tax would be higher, it might be the tax would be lower, but still we do not get the entire money. 20,000 करोड़ में सपोज एक्सपेंडिचर से पता चल गया कि हमारे पास 11,000 करोड़ है, सो गवर्नमेंट विल मैनेज 9,000 करोड़ रुपीज़. बोरोइंग करेगी या टैक्स लेगी, तो कम टैक्स लगाएगी. बट ये गवर्नमेंट डजंट हैव द इन्फॉर्मेशन, तो इट माइट बी गवर्नमेंट विल थिंक लोगों के पास 4,000 करोड़ 4 लाख करोड़ रुपीज़ है, तो 16 लाख करोड़ की व्यवस्था करने लगेगी. सो फॉर दैट व्हाट द गवर्नमेंट विल हैव टू डू, दैट गवर्नमेंट विल हैव टू इम्पोज मोर टैक्सेस. ज़्यादा टैक्स लगाना पड़ेगा जी, तो हमारे ऊपर ही बर्डन आएगा. ज़्यादा लोन लेना पड़ेगा, हमारे ऊपर ही बर्डन आएगा. तो देयर कैन बी ओवर सप्लाई और देयर कैन बी अंडर सप्लाई. इट माइट दिस गवर्नमेंट विल थिंक कि 15 लाख करोड़ तो लोगों के पास है, इफ द इन्फॉर्मेशन नॉट देयर, तो क्या होगा, एक एजम्पशन ही तो होगा. तो 15 लाख करोड़ तो है, तो वी नीड टू मैनेज 5 लाख करोड़ रुपीज. सो पुट द टैक्स अकॉर्डिंगली, बोरो द मनी अकॉर्डिंगली. सो डोंट यू थिंक देयर वुड बी अंडर सप्लाई? वी ऑल नो ओवर सप्लाई से दूसरे जगह के जो फैसिलिटीज़ है वो कम होते हैं, और अंडर सप्लाई से काम ही नहीं होता है. अरे यहाँ पढ़ने के लिए 1 लाख रुपीज़ चाहिए आपको, तो अगर ओवर सप्लाई हो गया तो घर के फादर क्या करेंगे, दूसरे जगह के हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस करके आपको पैसा देंगे. और अंडर सप्लाई हो गया तो आपका एडमिशन ही नहीं होगा, इजंट इट? सो बोथ आर ओवर एंड अंडर, बोथ आर नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी. तो दैट्स वाई गवर्नमेंट नीड्स टू नो दैट हाउ मच मनी द पीपल हैव, सो दैट द एडिशनल मनी वुड बी अरेंज फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. तो ये ज़रूरी है पता लगाना. दैट्स वाई वी टॉक अबाउट द डिजिटल पेमेंट. मैक्सिमम करेंगे तो हर एक आदमी का एक्सपेंडिचर पता चल पाएगा. जो एक्सपेंडिचर करता है, वी ऑल नो, वी हैव स्टडीड अर्लियर कि एक्सपेंडिचर मेथड इज वन ऑफ द वे टू मेजर द नेशनल इनकम, और वेरी पॉपुलर. आप अपना एक्सपेंडिचर करते हो, नहीं तो बैंक से लेते हो, तो बैंक वाला तो बिल्कुल क्लियर है, अकाउंट में आता है जी वो. तो दैट इज वेरी मच क्लियर दैट कि दैट मनी यू हैव गॉट फ्रॉम समवेयर, रेस्ट मनी इज योर अर्न्ड, और इफ ब्लैक मनी दैट वुड ऑल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन योर स्टेटमेंट. तो इसीलिए डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने का एक तरीका ये भी है कि वी हैव द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ द पीपल, एंड इवन वी कैन हैव सो मेनी गुड प्रेडिक्शंस कि ये इन्फ्लेशन होने वाला है, ये प्राइस राइज होने वाला है. हमें पहले से उपाय कर लेना चाहिए. वी नीड टू अरेंज द थिंग्स अकॉर्डिंगली. सो दैट्स वाई दिस, द प्रॉब्लम विद द CPI इज द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. Yes, India's more than 78% people belong to the unorganized sector. They do the dealing in cash. कैश में डीलिंग होगी, इकोनॉमी एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा होगी,
but we do not know the exact income into that parallel economy, doesn't it? हमें नहीं पता है। आपको नहीं लगता है एक पैरेलल इकोनॉमी हमारे सामने खड़ा है जो रोड साइड में वो एडिडास और वो नाइकी सबका सामान बेचते हैं? नहीं, एडिडास नाइकी वाला अगर आ जाए इंडिया में तो कहेंगे भैया कितने लोगों के पास पैसा है जी, हमारा एक एक ट्रैक शूट 10-10, 15-15 हज़ार का आता है और इतने रोड वालों के पास इतना पैसा है कि रोड पर खत बेच रहे हैं, इजंट इट? नाइकी एडिडास सब बेचते हैं नहीं सब सारा, है ना? सारा उनसे पूछो ओरिजिनल तो बोला सर फैक्ट्री से आया सीधे, है ना? वन साइड टोल कि अरे तुम झूठ बोल रहे हो, तो बोला सर आपका सवाल भी तो ऐसा है, रोड साइड में पूछ रहे ओरिजिनल है तो मैं क्या बोलूँगा, मैं अपने सामान को खराब थोड़ी बोलूँगा। सो इवन वो भी जाए कहीं जा रहा होगा एडिडास का उद्घाटन करने, रास्ते में देख लेगा, कहेगा अरे क्या उद्घाटन करने, रास्ते में इतने एडिडास बिक रहे हैं? नहीं, हाँ लोकल नहीं, मतलब वो कहेगा मेरे, हाँ वो ठीक है, वो नहीं समझेगा कि इतना है। तो सवाल है कि बट वो एक पैरेलल इकोनॉमी है। इफ दे आर सेलिंग द आइटम्स इनटू द कैश, गवर्नमेंट हैज लेस इन्फॉर्मेशन। अब थोड़ी प्रधानमंत्री अब फाइनेंस में चला के काउंट करें तुम कितना कमाए, दे डू नॉट, दे नॉट डूइंग, दे ओनली गेट द इन्फॉर्मेशन थ्रू द चैनल्स। अगर बैंक के थ्रू पेमेंट हुआ, वो पेटीएम के थ्रू हुआ या कुछ भी हुआ, तो दैट्स वी आर प्रमोटिंग इट। एक वो भी एक बहुत बड़ा तरीका है। और कैशलेस ट्रांजैक्शन का एक फ़ायदा ये भी है कि 7,400 समथिंग करोड़ रुपीज़, 7,425 करोड़ जो हमारा प्रिंटिंग ऑफ नोट्स में करेंसी में जाता है वो हमारा बच जाएगा। बचेगा तो दैट मनी वी कैन यूज समवेयर एल्स, डजंट इट? कहीं और यूज़ करेंगे उसको, तो वो भी है हमारे पास। बाकी जो कन्वीनियंस है वो तो है ही, ईजी है, नो वन कैन स्टील इट, मोबाइल में है हम उसको करते हैं, और कितना भी हम ट्रांजैक्शन दिखा सकते हैं, कोई डर नहीं है, बिकॉज बैंक के थ्रू दिखाना ही तो गवर्नमेंट चाहती है आप दिखाओ। बियॉन्ड अ लिमिट द टैक्स वुड बी इम्पोज्ड। So anyway, so this CPI, so right, one of the biggest demerits with the CPI, क्या इस जनता को गर्मी नहीं लग रही है? चलाते बंद करते रहो थोड़ा, पीछे वाले को, हाँ थोड़ा सा करते रहो, एक बार उठा दो। हम लोग पैक है ना, देयर इज नो वेंटिलेशन, है ना, तो ये पैक में तो थोड़ा सा चाहिए। So, yes, right. One of the biggest demerits with CPI, that exact information of the transactions are not available. Informations of the transaction are not available. Full stop. More than 75% Indian economy, more than 70, कितना लिखा? 78, sorry, more than 78% Indian economy is an unorganized one. One. Full stop. This sector mostly deals in cash. Mostly deals into cash. So it's quite difficult to measure inflation. Okay. Change the paragraph. Although since April 2014, RBI considers CPI based inflation to measure
not measure, to formulate its monetary policy, to formulate its monetary policy, to formulate its monetary policy. To formulate, yeah. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था यूपीएससी का लास्ट वाला, ऑल्दो आईएएस का, यूपीएससी में आईएएस का नहीं, सीडीएस का, कि वो किसको अपने मॉनेटरी पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में किसको कंसीडर करती है. तो ऑप्शन वाज डब्ल्यूपीआई, ऑप्शन वाज सीपीआई, ऑप्शन वाज जीडीपी डिफ्लेक्टर एंड ऑप्शन वाज पीपीआई. एक पीपीआई भी है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स. इंडिया में हम फॉलो नहीं करते हैं उसको, हम इन्हीं तीनों करते हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स. तो ये ऑप्शन था, सीडीएस का क्वेश्चन था यूपीएससी का. सो नाउ वी सी दैट जीडीपी डिफ्लेक्टर, प्लीज. जीडीपी डिफ्लेक्टर, अच्छा डिफ्लेक्टर nominal GDP divided by real GDP into 100. Divided by real GDP into 100. Price of current year into quantity of current year. पहले पढ़ चुके हैं जी इसको, उसी का यूज है. प्राइस ऑफ करंट ईयर, सी ईयर मतलब करंट ईयर, इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर. वही करंट ईयर बोल रहा हूँ मैं. अरे यही तो है, कुछ तो है. क्यों क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर लिख लो, लिख लो. सी ईयर आप लिखोगे बाद में वो कभी सी नहीं होगा, आप कहोगे ओ आई सी. नीचे पी प्राइस ऑफ बेस ईयर into quantity of current year. हाँ इंटू है 100 है, 100 100. ठीक है, तो डोंट यू थिंक कि क्वांटिटी तो वही है जी. इट्स ऑल अबाउट द कंपैरिजन ऑफ प्राइस. प्राइस का ही तो कंपैरिजन है, क्वांटिटी तो वही है ना. सो जीडीपी डिफ्लेक्टर इज द बेस्ट वन. ये बेस्ट है इन्फ्लेशन के मेजर के लिए. बट द प्रॉब्लम इज कि जीडीपी के फिगर्स हर एक 3 महीने में आते हैं. इट कम्स ऑन द क्वार्टरली बेसिस. सो इन्फ्लेशन फिगर्स ऑल्सो कम ऑन द क्वार्टरली बेसिस. वाइल दिस सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन फिगर्स कम ऑन द मंथली बेसिस. तो मंथली बेसिस पे हम असेसमेंट कर पाते हैं, उसके अनुसार प्रोग्राम बना पाते हैं. नहीं, यदि इकोनॉमी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाए एंड इफ़ वी आर रिलाइंग मोर ऑन द जीडीपी डिफ्लेक्टर, तो हमें 3 मंथ्स तक वेट करना पड़ेगा कि फिगर आए तब पॉलिसी बनाएंगे ना. इसमें तो 1 मंथ का हम देख लेते हैं. पहले ये वीकली बेसिस पर आते थे. यस, डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई. तो डब्ल्यूपीआई को हमेशा थर्सडे को निकाला जाता था, दोनों को, और न्यूज़पेपर में वो फ्राइडे को आते थे. तो इंडिया में फ्राइडे बुक है किसी और काम के लिए, फिल्म के रिव्यू के लिए. यस, सो मोर फोकस वाज देयर ओनली. इन्फ्लेशन लोग भूल जाते थे. इट वाज नॉट अ फेनोमेनन एट दैट टाइम. सो उसको हर एक फ्राइडे कर दिया गया, एवरी फ्राइडे. न्यूज़पेपर इट विल कम ऑन सैटरडे. लोग थोड़ा ध्यान देंगे कुछ नई चीज़ हुई है. बट द डिपार्टमेंट्स टोल्ड दैट इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू मेजर द इन्फ्लेशन फिगर्स विद इन अ वीक. सो इट वाज मेड ऑन द मंथली बेसिस. पहले सीपीआई का आता है और फिर 1-2 दिन बाद डब्ल्यूपीआई का आता है. ऐसे ही होता है. सो राइट, ऑल्दो जीडीपी डिफ्लेक्टर इज द बेस्ट मेजर ऑफ इन्फ्लेशन. Best measure of inflation.
but it is rarely used in India. But it is rarely used in India because figures come on the quarterly basis. Figures come on the quarterly basis. Because figures come on the quarterly basis. Figures come on the quarterly basis. GDP deflation. Yes. If you see a GDP deflator का figures come on the quarterly basis. While inflation through WPI and CPI, through WPI and CPI is measured on the monthly basis. Is measured on the monthly basis. Is measured on the monthly basis. Okay? Okay. Now we will see the causes of inflation. Yes, right. Causes of inflation.